Okay. Now see, we were studying reproductive system. So the contents were anatomy and physiology of the male and female reproductive systems. So we have almost covered the anatomy of the male reproductive system with physiology. Okay, in male reproductive system, we have discussed the process of spermatogenesis. Okay, and then we have seen the functions of the testosterone, which is a sex hormone in male reproductive system. Now today we will try to see in detail the female reproductive system. So we have almost done with the major portion, only the part of ovary is remaining, and today we will try to see the oogenesis also. Okay, now see, directly I am going to the main slide. This we have already completed. Okay, now see, this was the topic, female reproductive system. So we have divided female reproductive system into external genitalia and internal genitalia. Okay, so in internal, see, mute yourself. Okay, so in external genitalia, we have seen labia majora, labia minora, clitoris, vaginal orifice, vestibule, and hymen. So this we have already discussed. So today's topic is directly we are going to study today's topic, that is uterine tube. Okay. Now see uterine tube. So see the figure is there. So you can see the diagram. In diagram, now see this part is uterus. Okay. This part is uterus. So we have divided uterus into three parts. That is, first part is fundus of the uterus, second one is body of the uterus, and then third one is cervix. Okay, so this is uterus. Now just beside uterus you can see this is a tube like structure. So this tube like structure is called as fallopian tube or uterine tube. Okay, now see, on one side this tube is attached to the uterus, and on the second side this is attached to the ovary. Okay, so this finger like projections, so they are called as fimbriae. Okay, fimbriae, finger like projections, so they are joining, they are holding the ovary. Then we can see this one, this portion, this is called as ligament, and the ligament is called as ovarian ligament, and this one, the yellow portion, this portion is called as broad ligament. Okay, so in ovary we will try to study uh, this ovarian ligament and broad ligament. So meanwhile, just you can concentrate on the uterine tube. Okay, am I audible? Anyone? Yes, sir. You just just give me any one of you. You just give me confirmation so that I can go ahead with the other slides. Okay. Yes, sir. Huh. Yes, sir. So now see, this is length, that is 10 centimeter long, and then now see, it extends from the side of the uterus. So you can see this is side of the uterus between body and the fundus. Now see, this is fundus and this is body. तो ये दोनों के जो in between जो space है, यहाँ से क्या होगा कि ये fallopian tube ये extend होगा. Then the end of each tube has a finger like projection which is called as fimbriae. So these are finger like projection. ये पूरे जो है finger like projections है. The longest of this is ovarian fimbriae. इसके अंदर देखो ये जो रहेगा long one, this one will be ovarian fimbriae which is in close association with the ovary, जो ovary के close association में है. Then अगर उसका structure हम देखेंगे, so it has one outer covering of the peritoneum. Okay, outer covering है. So this is called as broad ligament.
and middle layer of the smooth muscle lined with the ciliated epithelium. ओके तो ये इसका स्ट्रक्चर है. आउटर कवरिंग रहेगा इसमें पेरिटोनियम का, और इनर मिडल लेयर के अंदर जो रहेगा स्मूथ मसल रहेगा. नाउ कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड. ओके नाउ सी द फंक्शन. अब इसमें फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है इसका? इट कन्वे द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस बाय पेरिस्टाल्टिक एंड सीलियरी मूवमेंट. तो यहाँ पर जो ओयूलेशन होगा, ओके ये ओयूलेशन से जो ओवम आएगा तो ये यहाँ से कैप्चर होगा और ये पूरा यहाँ से ट्रैवल होकर यहाँ यूटेरस के अंदर इम्प्लांट होगा. तो ये जो कन्वे करना है, कन्वे ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू द यूटेरस, so this is with the help of uterine tube. Okay, now see the second function, mucus. The mucus secreted by the lining membrane provide ideal condition for movement of ova and spermatozoa. तो इसके अंदर एक म्यूकस सिक्रेट होगा जो एक आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करेगा मूवमेंट के लिए, ओवा और स्पर्मेटोजोआ के मूवमेंट के लिए. और ये जो मूवमेंट है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है. जैसे इंटेस्टाइन का मूवमेंट होता है, वेव टाइप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, और सीलियरी मूवमेंट भी है. उसके अंदर सीलिया भी होगा, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस भी होंगे. तो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये ओवम को क्या करेगा? मूव करेगा फ्रॉम ओवरी टू यूटेरस. थर्ड फंक्शन रहेगा फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम यूजुअली टेक प्लेस इन द यूटेराइन ट्यूब. तो यूटेराइन ट्यूब के अंदर ही यहीं पर जो है फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म का और ओवम का. देन जाइगोट इज प्रोपेल्ड इनटू यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन. तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट, जाइगोट जो कॉम्बिनेशन रहेगा स्पर्म का और ओवम का ये प्रोपेल्ड होगा और यहाँ पर जाकर क्या होगा? इम्प्लांट हो जाएगा. ओके सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द यूटेराइन ट्यूब. फर्स्ट फंक्शन रहेगा कन्वे ऑफ द ओवम, देन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, and it is giving a location for the fertilization, and it propelled the zygote till the uterus for implantation. Okay, is that clear? Can we go ahead? Yes, sir. Okay. Okay, if you have any doubt you can put a remark in the chat box. Okay, I'm watching the chat box. Now see ovaries. So this is an important part of the female reproductive system, so we have to study it thoroughly. Now see location, it lies in the shallow fossa on the lateral wall of the pelvis. Okay, so it is in the pelvic region. Then second point, size is 2.5 to 3.5 centimeter long, 2 centimeter wide and 1 centimeter thick. Okay, so smallest part. Then attachment, each is attached to the upper part of the uterus by ovarian ligament. Okay, just now we have seen in the last slide. Okay, last slide, this one, it is attached by ovarian ligament, and on another side it is attached by the broad ligament. Then broad ligament, and then by and to the broad ligament by mesovarium. So mesovarium is a fibrous part. Now you can see in this diagram. So this is mesovarium. So this is providing a space for blood vessel nerves. Okay, blood vessel और nerves क्या होगा? यहाँ से ovary के अंदर आएगा. Now see structure of ovaries. Ovaries has two main tissues, two layers of main tissues. One is medulla. Now see, this is the internal portion. So this internal portion is called as medulla, and the other one, cortex. Cortex means this surrounding. Okay, this surrounding portion is called as cortex. तो ये medulla रहेगा और this will be cortex. Now see, cortex में क्या रहेगा? First of all, we will try to see medulla. Medulla lie in the center and it is having fibrous tissue, blood vessel and nerves. Okay, देखो यहाँ पर देखो ये red portions जो दिख रहे हैं, all these are blood vessels. इसी के अंदर nerves भी होगा और fibrous tissues भी होगा medulla में. Now cortex. Now cortex is having connective tissue, stroma covered by germinal epithelial cell. Now see, this is germinal epithelial cell. तो ये पूरा जो covering रहेगा कॉर्टेक्स का, ये जर्मिनियल एपिथेलियल सेल का रहेगा. देन इट कंटेन्स ओवेरियन फॉलिकल. ओके,
ओवेरियन फॉलिकल एट वेरियस स्टेजेस। देखो अब यहाँ से स्टार्ट अगर करते हैं हम लोग, जैसे ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑल दीज आर ओवेरियन फॉलिकल एट डिफरेंट स्टेजेस। ओके, और अगर आप यहाँ देखोगे तो फाइनली यहाँ पर ओवम रिलीज हो रहा है। So this ovum release the process is called as ovulation. Then this is Graafian corpus luteum, then Graafian follicle. So all these are the different stages of the ovarian follicle. तो ये पूरा जो event होगा ये पूरा cortex में होगा. Okay. Now see, before puberty. Okay, before puberty, before the age of 18, the ovaries are inactive, but stroma already contains immature primordial follicle which the female has from birth. Okay, देखो प्यूबर्टी से पहले ओव्यूलेशन नहीं होगा, बट उसके अंदर ओवरीज के अंदर ऑलरेडी जो है इमैच्योर फॉलिकल रहेगा, और ये इमैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड एज प्रीमोर्डियल सेल. ओके, सो विच द फीमेल हैज फ्रॉम बर्थ. तो ये बर्थ से ही फीमेल के बॉडी में रहेगा. इसको और डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, बट यहाँ पर इतना याद रखो कि बिफोर प्यूबर्टी और बिफोर बर्थ द females are having ovaries, and that ovaries are having immature follicles which are called as primordial follicles. Okay, next, now during child bearing years, मतलब 18 के आगे या 17 के आगे it may vary. So about every 28 days one ovarian follicle, okay, matures, ruptures and release its ovum into peritoneal cavity. After rupture it is called as Graafian follicle. देखो यहाँ पर आपको दिखेगा ये ruptured follicle है, वो कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो रहा है, देन वो फिर एक फुल्ली फॉर्म कॉर्पस लुटियम एंड ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, सो this is during child bearing years. This is called as ovulation. It occurs during each menstrual cycle. Okay, so what we have studied in this slide, we have studied in this slide two part. One is medulla and second one is cortex. Okay, so medulla is having blood vessel, nerves and fibrous tissue. और ये जो कॉर्टेक्स रहेगा, कॉर्टेक्स के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स है जो अलग अलग स्टेजेस में रहेगा. ओके, जैसे यहाँ पर दो पॉइंट डिस्कस किए हमने, बिफोर प्यूबर्टी उसके अंदर भी जो रहेगा फॉलिकल रहेंगे बट वो इमैच्योर रहेंगे. ओके, और उसके बाद जब वो ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल, देन इट विल रिलीज ओवम. ओके, जैसे यहाँ पर रिलीज हुआ वो कन्वर्ट हो गया कॉर्पस लुटियम में, देन द प्रोसेस कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. तो ये पूरा जो इवेंट होगा ये कॉर्टेक्स में होगा. ओके, नाउ देखो ये स्लाइड के अंदर एक डेज लिखा हुआ है, डे 12, then day 14, day 20, day 28. So these are the days of the menstrual cycle. So that we will study in detail. Okay, हर डे में या ड्यूरेशन ऑफ डेज में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस कौन कौन से होते हैं, वो पूरा आ जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर. ओके, now see functions of the ovaries. Is there any problem in this slide or any query? Structure of the ovaries? No, sir. Okay. Now see functions of the ovaries. So we have to be very careful because few hormones are there. Okay, now see we can start with the hypothalamus. Now see hypothalamus is secreting luteinizing hormone, releasing hormone LHRH. Then this LHRH is going to pituitary, anterior pituitary, and it is secreting FSH and LH. Now see FSH is acting on ovarian follicle. Okay, and then there will be maturation of ovarian follicle. At the same time the follicular lining is secreting estrogen. Okay, it is secreting estrogen. देखो यहाँ पर I have given FSH from anterior pituitary helps in maturation of follicle and estrogen secreted by follicular lining of the cell. So FSH is secreted by
pituitary gland, then it is helping in maturation. Okay, it is secreting in it is secreted by anterior pituitary, and it is helping in maturation of the ovarian follicle. Then ovarian follicle is secreting estrogen. Now LH from anterior pituitary, it is forming corpus luteum. ओके जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कॉर्पस लूटियम. ओके देखो ये कॉर्पस लूटियम, तो ये कब फॉर्म होता है? आफ्टर ओयूलेशन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? LH is triggering ovulation or it is causing formation of corpus luteum. Now this corpus luteum is secreting progesterone and some estrogen. Okay, it is secreting progesterone and some estrogen. Okay. So now see, if the ovum is fertilized, it embeds itself in the wall of the uterus, where it grows and develops and produces hormone, and this hormone is called as human chronotropic chorionic gonadotropin, HCG, human chorionic gonadotropin hormone. Okay, so now see this HCG stimulate corpus luteum to continue secreting progesterone and estrogen for the first 3 months of the pregnancy, and thereafter this function is continued by the placenta. Okay, so this HCG, it stimulates the corpus luteum to continue secreting progesterone and estrogen for first 3 months, and thereafter the function is continued by placenta. See, I have one flow chart, so simply we can go through this flow chart. See, primary follicle in ovary containing immature ovum. Now see, this is ovary which is having मीटिंग तो लॉक नहीं है. One second, I'll just check. नहीं है लॉक, मीटिंग नहीं है. मीटिंग इज नॉट लॉक. ओके, एनी हाउ रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है रिकॉर्डिंग देख सकते हैं. ठीक है, चलो. नाउ सी, ये प्राइमरी फॉलिकल है इन ओवरी विथ इमैच्योर ओवम. FSH आएगा. नाउ दिस FSH, एक सेकेंड, व्हाट्सएप आ रहा है कुछ. ओके, कुछ स्टूडेंट का लॉगिन नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप कर रहे हैं. ठीक है, देखो ये प्राइमरी फॉलिकल इन ओवरी कंटेनिंग इमैच्योर ओवम. सो ये इमैच्योर ओवम है. नाउ FSH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, ये उसको मैच्योर करेगा. देन LH की वजह से क्या होगा? ओयूलेशन होगा. नाउ ओयूलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम फॉर्म होगा, और दिस कॉर्पस लूटियम सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन एंड सम एस्ट्रोजन. ओके, नाउ सी, अब अगर ओयूलेशन होता है तो आइदर ओवम फर्टिलाइज होगा और अदरवाइज नहीं होगा फर्टिलाइज. अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये अगेन इट विल कॉज मेंस्ट्रुएशन. ओके, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, यूटेरस के अंदर जो लेयर है, फंक्शनल लेयर है, वो रप्चर हो जाएगा और यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन होगा और न्यू साइकिल बिगिन हो जाएगा. अगर ये फर्टिलाइज होता है तो ओवम विल कन्वर्ट टू जाइगोट, and zygote will embed into the uterine wall, and then there will be pregnancy. Otherwise, इसके साथ में ही दूसरा क्या होगा कि जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये zygote ये सिक्रेट करेगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन HCG, और it will stimulate corpus luteum to secrete
प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन फॉर फर्स्ट 3 मंथ। 3 मंथ तक जो रहेगा वो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा कॉर्पस लुटियम से, और देर आफ्टर वो प्लासेंटा से सिक्रेट होगा। ओके, ये हमने देखा कॉर्पस लुटियम कॉर्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट होता है, और समटाइम्स मोर देन वन फॉलिकल मैच्योर्स at a time, releasing 2 or more ova, which is giving multiple pregnancy. Okay, so now see what we have studied in these 2 slides. The first point is hypothalamus. Okay, first point is hypothalamus. Hypothalamus is secreting LH, RH, then anterior pituitary is secreting FSH and LH. FSH is helping in maturation of ovarian follicle, और आफ्टर मैच्योरेशन देयर विल बी रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन। देन LH क्या करेगा, ये जो मैच्योर हो गया है ओवेरियन फॉलिकल, यहाँ से ओव्यूलेशन होगा और अब वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस लुटियम में। नाउ दिस कॉर्पस लुटियम इज सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पर आ जाओ। यहाँ तक हमने देखा ओव्यूलेशन हो गया, कॉर्पस लुटियम हो गया, वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट कर रहा है। अब यहाँ पर ओव्यूलेशन अगर होता है तो ओवम फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा। ओके, अगर फर्टिलाइज होता है तो ये एम्बीड हो जाएगा यूटेराइन वॉल में, प्रेगनेंसी हो जाएगा, और HSG ये अगेन कॉर्पस लुटियम को इनिशिएट करेगा, एक्टिवेट करेगा टू सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन फॉर 3 मंथ्स, एंड आफ्टर 3 मंथ्स प्लासेंटा डेवलप हो जाएगा, देन दैट दिस प्लासेंटा विल सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। सेकंड पोर्शन, इफ ओवम नॉट फर्टिलाइज तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। ओके, एंड न्यू साइकिल बिगिंस। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट है कॉर्पस अल्बिकन्स। तो कॉर्पस अल्बिकन्स क्या है, आफ्टर डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम। ओके, डीजनरेशन के बाद कॉर्पस लुटियम, जैसे यहाँ पर हम यहाँ बता सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर ओके कॉर्पस लुटियम डीजनरेट हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस अल्बिकन्स में। और कभी ऐसे होता है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है, तो व्हाट इट मीन्स के वन फॉलिकल मैच्योर्स, 2 फॉलिकल, okay, 2 follicle matures at a time and they are releasing 2 or more ova. okay, तो ये इसकी वजह से क्या होगा कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होगा। इज इट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट आई कैन Yes, रिपीट sir. फॉर यू, Clear. आई एम ऑब्जर्विंग द चैट बॉक्स। ओके, बिकॉज थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है, इतना भी क्रिटिकल नहीं है, केयरफुली देखोगे सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। Now see, this is oogenesis, which is called as formation of gametes. जैसे हमने देखा था spermatogenesis. So in same way, this is oogenesis. Now see, these are the points, important points. It begins in female before they are even born. तो उनके पैदा होने से पहले ही, before they born, it begins in the ovaries. Then during fetal development of mother या कोई भी female, primordial germ cell differentiate within the ovaries and convert to oogonia. मतलब अभी fetal development ही हो रहा है फीमेल का, तो उस fetal development के ड्यूरेशन में ही primordial germ cell वो differentiate हो रहे हैं ovaries में, and it is converting into oogonia. अब ये oogonia is having 2n, तो ये फर्टिलाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन के लिए जो हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा oogenesis का जो आउटकम होगा, ओके, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का जो आउटकम था वो हेप्लॉइड सेल था, यानी सिंगल एन था वो। तो यहाँ पर oogonia ये लास्ट पॉइंट नहीं है, बिकॉज दिस इज 2n, ओके, एंड प्रोडक्ट नहीं है oogenesis का, तो ये oogonia है, ये प्रोसेस में अभी है oogonia। ओके, now see, this oogonia is again converting into millions of germ cell. अब ये बहुत सारे जो germ cell है they are degenerating and that process is called as atresia. अब now a few however develops into larger cell which is called as primary oocyte. okay, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो, born से पहले ही before birth, ओके, फीमेल के अंदर जो है ये प्रोसेस बिगिन हो रहा है, शुरू हो रहा है। ओके, फेटल डेवलपमेंट के अंदर ही जर्म सेल
कन्वर्ट हो रहे हैं ओगोनिया में. ओगोनिया में अगेन इट इज डिवाइडिंग इनटू मिलियंस ऑफ जर्म सेल. नाउ मोस्ट ऑफ देम आर डीजनरेटेड बाय प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज एट्रीसिया. और कुछ उसके अंदर से क्या होता है, डेवलप होते हैं लार्जर सेल में. ओके, so that larger cell is called as primary oocyte. Now this primary oocyte enter the process of meiosis 1 during fetal development but do not complete that phase until puberty. मतलब ये सेल डिवीजन में एंटर हो जाता है meiosis 1 में, बट वो कंप्लीट नहीं होता है, वो प्रोसेस में ही रहता है, कंप्लीट नहीं होता है टिल puberty. Is that clear? Any doubt in this slide? Okay, कोई डाउट है इसमें? यस सर. कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? ऑडिबल हूं मैं? नो सर, नो सर. No, sir. हाँ, ऑडिबल. ओके, जाना है आगे? हाँ सर. Okay. Now see, oogenesis कंटिन्यू करते हैं हम लोग. Now during this arrest stage of development, अभी हमने देखा meiosis में वो meiosis 1 में स्टॉप हो गया प्रोसीजर till puberty. अभी ये क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग अरेस्ट स्टेट जो हमने देखा कि ईच प्राइमरी oocyte, ओके, प्राइमरी oocyte जो रहेगा इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ द फ्लैट सेल. देखो अब ये प्राइमरी oocyte है आपका, ये पूरा. ओके, तो अब ये सराउंडिंग है इसके follicular cell, cuboidal follicular cell, and this is basement membrane and these are the stromal cell, और ये कोलेजन फाइबर है. तो ये पूरा स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल. ओके, अब एट बर्थ ये कितने होते हैं प्राइमरी oocyte, मतलब ये इंटरनल स्ट्रक्चर. ओके, प्राइमरी oocyte, तो ये 2 लाख टू 20 लाख, ओके, रिमेन्स इन ईच ओवरी. बर्थ के टाइम पर ही 2 लाख से 20 लाख तक प्राइमरी oocyte ओवरी में प्रेजेंट रहते हैं. ऑफ दिस अबाउट 40,000 आर स्टिल प्रेजेंट एट प्यूबर्टी. तो उसमें से बहुत सारे क्या होते हैं कि डीजनरेट हो जाते हैं, बट 40,000 अप्रोक्सीमेट फिगर है, 40,000 का वो प्यूबर्टी तक रहता है. और 400 विल मैच्योर एंड ओयूलेट. अब ये जो है 400, इसमें से पूरे लाइफ साइकिल, पूरे लाइफ टाइम के अंदर 400 ही क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं और ओयूलेट होते हैं फीमेल के पूरे लाइफ साइकिल के अंदर. ओके, देखो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है ये पॉइंट. ओके, स्टार्ट हुआ है यहाँ से बर्थ के टाइम पर ही. उसके अंदर जर्म सेल ओगोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, ओगोनिया अगेन मिलियन ऑफ जर्म सेल में कन्वर्ट हो रहा है, और अल्टीमेटली एक प्राइमरी oocyte बन रहा है लार्जर साइज का. तो ये प्राइमरी oocyte मियोसिस स्टार्ट तो करता है बट होल्ड हो जाता है, वो कंप्लीट नहीं होता है टिल प्यूबर्टी. अब ये प्राइमरी oocyte जो रहेगा, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू अ स्ट्रक्चर. ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, प्राइमरी oocyte ही है, बट ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको हम डिफाइन करते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल, जो 20 लाख तक जो है ओवरी में रहता है बर्थ के टाइम पर, और फिर वो 40,000 तक ही बचता है प्यूबर्टी तक, और उसमें से 400 ही यूटिलाइज होता है पूरे लाइफ टाइम तक. ओके, तो ये हो गया हमारा प्रीमोर्डियल फॉलिकल. अब देखो, अब नाउ दिस प्रीमोर्डियल फॉलिकल ईच मंथ आफ्टर प्यूबर्टी, अब प्यूबर्टी के बाद अंटिल मेनोपॉज, ओके, लास्ट जो ईयर होता है साइकिल का, उसके बाद साइकिल स्टॉप हो जाता है. So FSH and LH further stimulate development of several primordial follicle. तो FSH और LH ये क्या करते हैं कि प्रीमोर्डियल फॉलिकल को प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो ये नाउ सी दिस इज प्राइमरी फॉलिकल. अब इसके अंदर देखो बहुत सारे चेंजेस है. जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो ये अभी हो गया आपका प्राइमरी oocyte, जो ये प्राइमरी oocyte हो गया. नाउ दिस प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल, और उसके अंदर एक लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसेडा. ओके, दिस लेयर इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसेडा एंड ऑल दीज सेल्स आर कॉल्ड एज ग्रेन्युलोसा सेल. ओके, उसके बाद ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और एक लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज थीका फॉलिक्यूली. ओके, ये लेयर है.
तो ये कन्वर्ट हो गया आपका प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। ओके, प्रीमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सी प्राइमरी फॉलिकल डेवलप इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, अब प्राइमरी से सेकेंडरी में आ जाओ अभी। अब देखो ये सेकेंडरी फॉलिकल है। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे चेंजेस क्या है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंटरनल से स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी oocyte वैसे ही है। ओके, जोना पेलिसेडा वैसे ही है। अब देखो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स है, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है यहाँ पर। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंट्रम। Okay, and what is this antrum? This antrum is having follicular fluid. Okay, follicular fluid secrete करता है ये granulosa cells, और ये granulosa cell follicular fluid secrete करते हैं, और this structure is called as antrum. अब now see, एक और लेयर यहाँ पर फॉर्म होता है। तो ये लेयर, this layer is called as corona radiata. तो ये फर्मली अटैच हो जाते हैं, ग्रेनुलोसा सेल फर्मली अटैच होते हैं, और दिस लेयर इज कॉल्ड एज corona radiata. Is that clear? Any doubt in this? Okay, I have missed one point, theca interna and theca externa. Now see the theca layer is again converted into two different layer, theca interna and theca externa. देखो यहाँ पर ये externa है और ये interna है। अब ये interna is secreting estrogen. ओके, तो एस्ट्रोजन इज अगेन अ हार्मोन। इसका क्या रोल है ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। ये स्लाइड क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? Yes, sir. क्लियर है पूरा? ओके, एकदम सिंपल है। Yes. हाँ, जस्ट उसको क्या करना है कि प्राइमरी फॉलिकल से कंपेयर करो, उसके अंदर 2 से 3 ही स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे हैं, बाकी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ओके, नेक्स्ट अभी नाउ सी, अब देखो ये द सेकेंडरी फॉलिकल इवेंचुअली बिकम लार्जर एंड टर्निंग इनटू अ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब देखो वही सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है एक मैच्योर फॉलिकल के अंदर, विच इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस है। ओके, अगर हम चेंजेस देखेंगे, देखो अभी एंट्रम है, तो एंट्रम क्या होगा, यहाँ पर इनलार्ज हो गया। ओके, एंट्रम बहुत बड़ा हो गया। देन उसके अंदर देखो ये जोना पेलिसेडा है वैसे ही है, कोरोना रेडिएटा वैसे ही है, प्राइमरी oocyte भी वैसे ही है, और ग्रैन्युलो सेल्स का नंबर कम हो गया। ओके, ऑलमोस्ट वैसे ही है। नाउ सी द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नाउ सी, दिस इज प्राइमरी oocyte, दो दिस प्राइमरी oocyte इज हैविंग 2n। ओके, अब ये क्या करता है कि मियोसिस जो इनकम्प्लीट था, अब वो मियोसिस कंप्लीट हो रहा है, और इट इज कन्वर्टिंग इनटू 2 हैप्लॉइड सेल ऑफ अनइक्वल साइज। ओके, एन मतलब 23 क्रोमोसोम। तो अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये डिवाइड होता है मियोसिस के थ्रू, और देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल ऑफ अनइक्वल साइज। अब उसमें एक होता है स्मॉलर सेल साइज का और एक लार्जर साइज का। तो स्मॉलर साइज सेल इज कॉल्ड एज फर्स्ट पोलर बॉडी, इट इज हैविंग डिस्कार्डेड न्यूक्लियर मटेरियल। ओके, अब लार्जर साइज का जो है, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte, इट रिसीव्स मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर कि प्राइमरी oocyte has completed meiosis one process, and it gives 2 cell, all the two cells are haploid in nature. One is smaller in size, another one is larger in size. Smaller in size is called as first polar body, it is having packet of discarded material, it's a packet of discarded material. And larger cell is called as secondary oocyte, and this is the main player in the female reproductive system, secondary oocyte. Now see, once the secondary oocyte is formed, it begins in meiosis 2 and then stop in metaphase. अब यहाँ से क्या होगा कि meiosis 2 स्टार्ट होगा और वो मेटाफेज में जाके स्टॉप हो जाएगा। ओके, नाउ सी the mature Graafian follicle soon rupture and release a secondary oocyte. अब ये जो रहेगा, ये क्या करता है कि रप्चर होता है, और रप्चर होने के बाद ये secondary oocyte रिलीज करता है, और that process is called as ovulation. Okay, is that clear? Any doubt in Yes, this sir. slide? Okay, तो ये याद रखो यहाँ पर
कि एक पोलर बॉडी एक फॉर्म हुआ है और एक सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो दिस मे बी द लास्ट स्लाइड ओके ऑफ oogenesis. अब देखो यहाँ पर ये oogoneum है, ये 2n ओके, और देन दिस इज प्राइमरी oocyte, then it is converting into secondary oocyte and first polar body. ओके, तो यहाँ तक हमने देखा. अभी सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ, ये लास्ट स्लाइड में, ये इससे पहले वाली स्लाइड में ये सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ. उसके बाद नाउ सेकेंडरी oocyte और ये फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म हो गया. कहाँ पर? ये स्लाइड के अंदर, फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte. ओके, सेकेंडरी oocyte एंड, तो इसमें देखो ये सेकेंडरी फॉलिकल. ओके, तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये फॉलिकल को आप भूल जाओ, अभी आप डायरेक्टली इसको याद रखना, प्राइमरी oocyte. ओके, देखो यहाँ पर भी प्राइमरी oocyte है. ओके, देखो यहाँ पर भी प्राइमरी oocyte है. तो ये प्राइमरी oocyte को ही हम अब आगे कंसीडर करते हैं. तो ये हो गया आपका प्राइमरी oocyte विच इज हैविंग 2n. ठीक है, अब ये प्राइमरी oocyte इज कन्वर्टिंग इनटू सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी. तो ये हो गया आपका मियोसिस 1. नाउ सी सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte आ गया. नाउ दिस इज स्पर्म, सो देयर विल बी फर्टिलाइजेशन. ओके, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा और ये फर्टिलाइजेशन के बाद अगेन देयर विल बी मियोसिस 2. ओके, अभी हमने यहाँ देखा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेकेंडरी oocyte इज फॉर्म एंड बिगिंस मियोसिस 2 बट स्टॉप इन मेटाफेज. ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट होता है वो, बट मेटाफेज में स्टॉप हो जाता है. बट जैसे ही यहाँ पर स्पर्म अटैच होगा अगेन इट विल अंडरगो मियोसिस 2 और मियोसिस 2 से ये कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में और सेकंड पोलर बॉडी में. अब ये ओवम और स्पर्म, नाउ दिस विल कंबाइन एंड फॉर्म अ जाइगोट. ओके, तो ये जाइगोट. तो अब देखेंगे यहाँ पर, देखो ये एक सेकेंडरी पोलर बॉडी है और अगेन ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है इट मे डिवाइड इनटू 2 हेप्लॉइड सेल. ओके, तो ये यहाँ पर 1 हेप्लॉइड सेल, 2 हेप्लॉइड सेल, 3 हेप्लॉइड सेल एंड दिस इज हेप्लॉइड ओवम. ओके, तो एक oogoneum से सिर्फ एक ही ओवम फॉर्म हो रहा है. ओके, और ये जो बाकी जो सेल्स है ये डीजनरेट हो जाते हैं. आफ्टर सम टाइम वो डीजनरेट हो जाएगा, बट ये ओवम जो रहेगा दिस विल बी यूटिलाइज फॉर फर्टिलाइजेशन. मेल में ऐसा नहीं होता है. मेल के अंदर अगर आपको याद होगा तो 4 गैमेट्स बनते हैं. देखो ये बाय कॉन्ट्रास्ट. ओके, इन मेल 1 प्राइमरी स्पर्मेटोजाइट प्रोड्यूसेस 4 गैमेट. ओके, n ऐसे 4 स्पर्मेटोसाइट बनते हैं मेल के अंदर. बट फीमेल के अंदर क्या होता है कि एक ही ओवम, हेप्लॉइड ओवम फॉर्म होता है. ओके, सी अगेन आई एम रिपीटिंग. सी वी हैव स्टार्टेड विद द oogoneum 2n है वो प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है. अब प्राइमरी oocyte के कई स्ट्रक्चर है, जैसे हमने यहाँ देखा, फर्स्ट देखा हमने प्रीमोर्डियल फॉलिकल, उसके बाद देखा हमने प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद देखा हमने सेकेंडरी फॉलिकल. बट उसके अंदर ये जो प्राइमरी oocyte है वो कॉमन है. ठीक है, जब मियोसिस कंप्लीट होगा तो ये डिवाइड होगा सेकेंडरी oocyte में और फर्स्ट पोलर बॉडी में. अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म ये होगा, डीजनरेटिव मटेरियल रहेगा और सेकेंडरी oocyte के अंदर क्या होगा कि मेन साइटोप्लाज्म रहेगा. ठीक है, तो ये मियोसिस 2 में जाता है बट ये अरेस्ट हो जाता है. मियोसिस 2 में जाकर मेटाफेज में अरेस्ट हो जाता है. जब ये फर्टिलाइज होता है स्पर्म से तो अगेन ये फिर क्या होता है कि मियोसिस 2 में कंटिन्यू हो जाता है और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है ओवम के अंदर और सेकेंडरी पोलर बॉडी के अंदर. फिर ये ओवम जो है कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट के अंदर. जब ये कंबाइन हो जाएगा n से तो ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब एट दी एंड हमको क्या मिलेगा, एक ये सेकेंडरी पोलर बॉडी मिलेगा और अगर ये फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड होता है तो ये 2 सेल मिल जाएंगे यहाँ पर हमको. तो ये बाद में क्या होता है 1, 2 एंड 3 ये डीजनरेट हो जाता है. इज दैट क्लियर? ओके, Yes, sir. Yes, sir. ये देखो मेन पार्ट है
oogenesis का। तो इसके बाद बस यही मेन पोर्शन है oogenesis का। तो जब अगर क्वेश्चन आता है oogenesis का तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ से मैंने स्लाइड में लिया है, तो ये पूरे डायग्राम आना चाहिए। जैसे फर्स्ट वन इज दिस प्रीमोडियल फॉलिकल, ओके, ये बर्थ के टाइम में ही रहेगा, ओके, 2 लाख टू 20 लाख तक रहेगा। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, उसके बाद ये कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, देन ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद फिर वो सेकेंडरी oocyte आ जाएगा यहाँ पर। और फिर बाद में ये मियोसिस 1 के बाद, देन मियोसिस 2 के बाद वो अगेन सेकेंडरी oocyte से ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी होगा और अगेन जाइगोट में कन्वर्ट होगा। तो ये पूरा आना चाहिए इन oogenesis इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। और 4 मार्क्स नहीं, तुम्हारा तो अभी डिटेल रहेगा, 10 मार्क्स रहेगा या 5 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में by tomorrow, I will plan for tomorrow, so we will discuss the remaining portion, that is menstrual cycle and other remaining part, okay। कोई डाउट है? सर हाँ नेक्स्ट वीक से UT2 है, हाँ 23 से UT2 HAP है, का। या सबका ही रहेगा। तो उसमें जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो इस तरह के 2 टाइप के क्वेश्चन प्लान कर रहे हैं। तो मैं पोर्शन डिक्लेयर कर देता हूँ समरीन मैडम के साथ बात करके। तो उसके बाद तुम लोग क्या करना कि उसको प्रिपेयर करना। सर और 30 हाँ मार्क्स का ही होने सर वाला है ये पूरा। PPT सेंड कर दो ना। हाँ मैं अभी ये कल मैं तुमको सेंड कर देता हूँ, ये खत्म हो जाएगा ना कल। पूरा मैं कल फिनिश ही कर दूंगा, तो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा पूरा स्लाइड्स। तो देखो ये स्लाइड्स जो है ना ये रिवीजन के लिए रखो। फिर भी मैंने बहुत डिटेल ही बनाया है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसको एज ए नोट ही यूज करते। तो मैंने टोटोरा और रोशन विल्सन दोनों को कंबाइन करके ये स्लाइड्स बनाए हैं। तो फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि कीप इट फॉर रिवीजन पर्पस ओनली, और जो मेन तुम्हारा जो स्टडी रहेगा वो रोशन विल्सन से ही करो। थोड़ा सिंप्लीफाइड है, टोटोरा थोड़ा डिटेल है, ठीक है। सर क्वेश्चन आंसर कौन कितने मार्क्स के रहेंगे इसमें? तो मैं तुमको डिटेल बताता हूँ। एक्चुअली वो डिस्कशन हो रहा है, आज थोड़ा मीटिंग हुई है, तो मैं डिटेल तुमको व्हाट्सएप पे डालता हूँ। तो मेरे ख्याल से 30 मार्क्स का रहेगा और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के ही रहेंगे, MCQs ही रहेगा, सर ठीक है। और शॉर्ट आंसर का सर एक चीज और, समरीन मैडम ने कोई सिलेबस बताया है कि आपको? नो सर। नहीं बताया ना?